বিজেপির সরকার হলে কেউ রেহাই পাবে না। সন্দেশখালী প্রসঙ্গে অমিত শাহ এদিন বর্ধমানের মেমারি জনসভা থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন। নমস্কার, ইন্ডিয়া নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি, আমি ঋতুশ্রী মজুমদার। বর্ধমান পূর্বের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের সমর্থনে প্রচারে এসে ফের অমিত শাহের মুখে সন্দেশখালীর প্রসঙ্গ। বিজেপি ক্ষমতায় এলেও অভিযুক্তরা রেহাই পাবে না বলেও হুঁশিয়ারি শোনা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গলায়। ফের অমিত শাহের মুখে সন্দেশখালীর প্রসঙ্গ। গত 5ই জানুয়ারি তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডির অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র চেহারা নেয় উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালী। ইডি আধিকারিক সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর চড়াও হয় শাহজাহান অনুগামীরা। এরপর মারতে মারতে এলাকা ছাড়া করা হয় ইডি আধিকারিক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। এই নিয়ে ভোট প্রচারে এসে সরব হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিন বর্ধমানের মেমারির জনসভা ছিল অমিত শাহের। তিনি বলেন, সন্দেশখালীর মতো ঘটনা পৃথিবীতে কোথাও হয়নি। এর সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সবার জেলে যাওয়া উচিত। এখানে বিজেপির সরকার হলে এদের কেউ রেহাই পাবে না। শুধু সন্দেশখালী নয়, এদিন ভোট পরবর্তী হিংসা থেকে দুর্নীতি একের পর এক ইস্যুতে আক্রমণ করেন অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি নেতাকর্মীদের খুন করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা। বিজেপি সরকার গঠনের পর অভিযুক্তদের পাতাল থেকে খুঁজে বের করে জেলে পাঠানো হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ এর বিরোধিতা করছেন। বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ শরণার্থীরা নাগরিকত্ব পেলে আপনার আপত্তি কোথায়? আসলে অনুপ্রবেশকারীদের কথা ভেবেই আপত্তি করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, নরেন্দ্র মোদীর সব প্রকল্প দিদি নিজের নামে চালিয়ে দেয়। কেন্দ্রের পাঠানো টাকা দিদির গুন্ডারা খেয়ে ফেলেছে। বাংলায় 30টি আসন পেলে টাকা মানুষের কাছে চলে আসবে। একইভাবে এদিন ভোট প্রচারে রাজ্যে এসে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল বাংলাকে রক্তাক্ত করেছে। মাফিয়া মানুষের রক্ত শুষে নিচ্ছে। সন্দেশখালীর ঘটনায় অপরাধীদের সরকার প্রশ্রয় দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার যে সহায়তা পাঠায় তা জনতা পায় না। তৃণমূলে তা নিজেদের গুন্ডাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। জনতা তার লাভ পায় না। इंडिया न्यूज बांग्लार साथे जुक्त थाकुन और देखते थाकुन विशेष विशेष खबर। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, मगर मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये ममता दीदी कहती है धारा 370 मत हटाओ। अरे ममता दीदी, आपके कहने से देश नहीं चलता। मेरे बंगाल की जनता चाहती है कि कश्मीर में भारत का झंडा आसमान तक फैलाए, आसमान तक फैलाए। और भाई और बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। भाई और बहनों, यहां पर बंगाल के अंदर, देश के अंदर मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे गरीबों के कल्याण के लिए काम किए। आपके यहां बंगाल में करोड़ों लोगों के यहां, गरीबों के यहां जो मुफ्त चावल आता है वो नरेंद्र मोदी जी ने भेजा हुआ है। 12 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट, शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मगर ये दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं पहुंचने देती। मैं आपको बताने आया हूं, वर्धमान वालों, असीम सरकार को जिता दो। 30 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डाल दो। बंगाल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाई और बहनों, ये दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए।
हमारे नेताओं के होटल बुक नहीं होने देते, उनको गाड़ी नहीं मिलती है, जो होटल बुक होते हैं ममता के गुंडे खाली करा देते हैं। और मित्रों, मैं बताने वाला हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है, आपको जाना है, तय कर दिया है। भाई और बहनों, 21 के विधानसभा चुनाव में बनेश्वर रॉय, संदीप घोष, सुशील मंडल, रोबिन पॉल, सुखदेव प्रामाणिक, बलराम मांझी, काकालिक क्षेत्रपाल, दुर्गाबाला बाग, भादु दास, शोभ हांसदा, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीदी के गुंडों ने मार दिया। मैं आज दीदी बताकर जाता हूं, जिन जिन ने भी ये हत्या करी है, हमारी सरकार बनाने के बाद पाताल में से भी उनको ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे कार्यकर्ताओं पर चरस गांजा का केस करते और कोर्ट उनको निर्दोष छोड़ देती। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। निर्दोष गरीब कार्यकर्ताओं पर नारकोटिक्स के केस करती हो। अब आपके दिन भर गए हैं दीदी, आपके दिन भर गए हैं। भाई और बहनों, मोदी जी की सारी योजनाओं को ममता दीदी अपना नाम लगाकर नीचे भेज रही है। पीएम फसल बीमा योजना, उसको बांग्ला फसल बीमा योजना कर दिया। नरेंद्र भाई ने घर दिया, पीएम आवास, बांग्ला आवास किया। स्वच्छ भारत अभियान, मिशन निर्मल बांग्ला कर दिया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, खाद्य साथी योजना, जल जीवन मिशन को जल स्वप्न परियोजना। और इसमें भी मोदी जी ने बंगाल के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपया भेजा है। कितना भेजा है भाई बताओ तो? मैं फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनो। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है भाई? आया है? कहां गया? कौन खा गया? ये तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ खा गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो। हम ये पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। ममता दीदी कहती है सीबीआई और ईडी रेड करते। अरे ममता दीदी, आपके मंत्रियों के घर में से ये स्टेज पूरा भर जाए, इतना रुपया निकला। 51 करोड़ रुपया एक ही मंत्री के घर से निकला। मुझे बताओ वर्तमान वालों, जिसके घर से 51 करोड़ रुपया मिले उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो माताओं बहनों, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? दीदी, आप कितना भी शोर शराबा करो, जिसने गरीब बंगाल की जनता का पैसा खाया है उसको हम जेल में भेज कर रहेंगे, जेल में भेज कर रहेंगे। माताएं बहनें यहां बैठी, संदेश खाली जैसी घटना दुनिया में कहीं देखने को नहीं। उसकी बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की सरकार बनी। मां माटी मानुस की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल
नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। भाइयों और बहनों, आने वाले चुनाव में चिलचिलाती धूप है। आज भी 45 डिग्री टेम्परेचर में आप हजारों की संख्या में यहां आए हैं, मगर उस दिन गर्मी की परवाह मत करना। 1 घंटा अपने बंगाल के लिए निकालना, मेरे भाई असीम सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ वर्धमान वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? असीम सरकार को जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? बंगाल में 30 से ज्यादा कमल खिलाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सभी माताएं उठाए कृपया। सभी माताएं, संदेश खाली का सब लोगों को जेल में भेजना है। उठाइए हाथ, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। आप सभी का इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में इतने समय से बैठकर असीम सरकार जी को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।